ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بلند آواز سے کیجئے سبحان اللہ۔ آج ہمارا ربیع الاول کا 8واں موضوع ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ربیع الاول کا 8واں دن، 8واں موضوع جو چل رہا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے لوگ سالوں سال کا سفر کرتے تھے، سواریوں کے اوپر سالوں سال سفر کرتے تھے، پھر جا کر ایک ایسا مقام آتا اور وہاں پر جا کر رک کر وہ جا کر کہتے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کا فرمان سنائیے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور ہمیں وہ فرمان سنائیے۔ اور وہاں پر انہیں بٹھایا جاتا، پھر انہیں کہا جاتا انتظار کریں، ہم جو ہے وہ نہا دھو کر پھر آتے ہیں اور پھر ایک منبر لگاتے ہیں، اور پھر منبر لگا کر پھر حضور علیہ السلام کا فرمان تمہیں سناتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے اب انتظار کی بات نہیں ہے، بلکہ اب روزانہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنایا جاتا ہے۔ اور اب بھی کئی لوگ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے علماء سے ٹائم لینے کے لیے ہزاروں روپے پہلے دیتے ہیں، اور ڈیڑھ مہینہ بعد میں جا کر انہیں ٹائم ملتا ہے۔ پیسے ہزاروں روپے پہلے جمع ہوتے ہیں، 1.5 مہینہ 2 مہینے سال بعد جو ہے وہ ٹائم ملتا ہے کہ اب ایک پنڈال سجاؤ، اب اتنے لنگر کا اہتمام کرو، اب تم بیٹھو، اب انتظار کرو، اب وہ عالم دین صاحب یہاں پر آئیں گے اور اب تمہیں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا دین، حضور علیہ السلام کا پیغام سنائیں گے۔ اور وہ سننے کے لیے جب پتہ ہے کہ ہم نے 20,000 30,000 دے رکھا ہے، ہم نے سننا ہے، وہ سننے کے لیے انتظار ہوگا۔ جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، وہ بیٹھنے کے لیے ان کا دل بڑا ہونا چاہیے، جگر بڑا ہونا چاہیے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، نہ لنگر نہ جو ہے وہ کوئی لالچ، دراصل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضور علیہ السلام کے ساتھ حیوانات کی محبت کا ہے، کہ نبیوں کے ساتھ حیوانات نے کیسے محبت کی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے آ جائیں گے،
और जान लो कि यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। अब ये आयत करीमा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सफर कर रहे थे तो आपने एक जगह पर एक बस्ती को देखा जो उल्टी पड़ी है और लोग मरे हुए हैं, या किसी जानदार चीज को आपने देखा कि वो जो है वो मुर्दार हो चुकी है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप इल्मुल यकीन तो रखते थे, ये तो इल्म था, इसके ऊपर यकीन था कि जिस खुदा ने हमें जिंदा किया है उसी खुदा ने हमें मौत देनी है और मौत के बाद उसी खुदा ने दोबारा जिंदा करना है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इल्म और इसके ऊपर यकीन था। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐनुल यकीन चाहते थे कि मैं इल्मुल यकीन को ऐनुल यकीन अपनी आंखों के साथ देखकर मुशाहदा करके मजीद इसके ऊपर मोहर लगाऊं, शब्द करूं कि अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने वाला, मौत देने वाला, मौत के बाद दोबारा जिंदा करने वाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुदा ने फरमाया, इब्राहीम अगर यही तेरी चाहत है तो ठीक है, 4 परिंदे ले ले मुख्तलिफ किस्म के, और उन 4 परिंदों को अपने साथ मानूस कर लें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें दाना डालें, उन्हें पानी पिलाएं, उन्हें बड़ा करें और फिर एक एक को आवाज दें। वो आपकी आवाज पर लब्बैक कहता हुआ उड़ता हुआ आपके पास चला आए। जब वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 मुख्तलिफ तरह के परिंदे लिए और उन्हें पाला, हर रोजाना आप उन्हें खाना खिलाते हैं, वक्त पर उन्हें दाना खिलाते हैं, वक्त पर उन्हें पानी पिलाते हैं और फिर साथ उन्हें आवाज देकर बुलाते हैं। रोजाना की निस्बत ये हो रहा है, जब चारों परिंदे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुलाने पर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर वो दौड़ते हुए उड़ते हुए आपके पास आ जाते। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्राहीम अब ऐसा कर, इन 4 परिंदों को ज़िबा कर ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन 4 परिंदों को ज़िबा करते हैं और फरमाया, अब ऐसा कर, इनको ज़िबा करने के बाद इन 4 के गोश्त को आपस में मिला ले और इन 4 के गोश्त को आपस में मिलाकर फिर इनका जो है वो दोबारा कीमा कर दे, छोटी छोटी बोटी बना दे जैसे हम कीमा बनवाते हैं, बिल्कुल इनको आपस में मिला दे। अब पर उनके टुकड़े हो चुके, अब जो चूंजे हैं टुकड़े हो चुकी, सर टुकड़े हो चुके, पांव जो है वो टुकड़े हो चुके, गोश्त की हड्डी हड्डी का टुकड़ा हो चुका है, गोश्त खुद जो है वो कीमा बन चुका है, अब 4 खून भी आपस में मिल चुका है। अब कोई खबर नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अब फरमाया, इन गोश्त को मिलाकर कुछ गोश्त का हिस्सा जो है उस पहाड़ के ऊपर रख दें, कुछ हिस्सा जो है दूसरे पहाड़ पर रख दें, कुछ हिस्सा जो है वो पहाड़ के तीसरे हिस्से पर रख दें, पहाड़ के और जानब रख दें, चौथा हिस्सा चौथे पहाड़ पर रख दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। कीमा बनाने के बाद, मिलाने के बाद कुछ हिस्सा उसका एक पहाड़ पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर रखा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरमियान में है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने एक परिंदे को आवाज देते हैं, फरमाया जाता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोर को आवाज देते हैं तो मोर का हिस्सा जो है वो गोश्त के टुकड़े आपस में, कोई इस पहाड़ से आ रहा है, कोई इस पहाड़ से आ रहा है, कुछ सामने पहाड़ से आ रहा है, कुछ पीछे वाले पहाड़ से आ रहा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मोर को बुलाना था, गोश्त के टुकड़े आपस में जाकर मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक ढांचा तैयार होता है, एक तरफ से कोई चोंच की टुकड़ी आ रही है, कोई सर का टुकड़ा आ रहा है, कोई बालों का टुकड़ा आ रहा है, कोई पर का हिस्सा आ रहा है, कोई जो है वो पांव का हिस्सा आ रहा है, वो मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुकार पर वो मोर उड़ता हुआ, अपनी शनाइयां फहराता हुआ और वो बोलता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुकार होते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फरमाया, इब्राहीम अभी ठहर जाना, अभी देख दूसरे परिंदे को बुला। फरमाया, दूसरे परिंदे को, कबूतर को बुलाया जाता है। अब कबूतर का भी हिस्सा इसी तरह पहले पहाड़ से, दूसरे पहाड़ से, तीसरे पहाड़ से, चौथे पहाड़ से छोटे छोटे टुकड़े फौरन आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। फौरन खून के कतरात वहां पर आना शुरू हो जाते हैं।
फौरन सर धड़ पर वो सब मिलना शुरू हो जाते हैं। फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो परिंदा कबूतर होता है, वो भी आकर हुजूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर गिर जाता है बोलता हुआ, और तस्बीह यही बयान कर रहा होगा, अल्लाह अकबर। परिंदा भी कह रहा है अल्लाह अकबर, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर। दूसरा परिंदा भी उड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में। फरमाया इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर तीसरे परिंदे को फरमाया जाता है, उसके बारे में कौवा है कि वो कौवा, उसका सर धड़ और जो है वो पर और दिगर जो है वो जिस्म का हिस्सा, खून के कतरात और परों के जो है वो टुकड़े, गोश्त के टुकड़े, हड्डियां जो पीसी हुई हैं, और चूंट जो जगह से क्या जो है वो कई सैकड़ों में जो है वो टुकड़े हो चुकी है, बिल्कुल निशानात नहीं खत्म हो गए सब कुछ। फरमाया वो भी जो है वो बनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पर वो दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ, पर जो है वो फैलाता हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरता है, और उसके जबान पर भी यही जारी होता है अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कह रहे होते हैं अल्लाह अकबर। और फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर चौथे को बुलाते हैं। फरमाया जाता है वो चौथा था मुर्गा। ये जो मुर्गा है इसके बारे में आता है, चौथा जो परिंदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पाला, अपने तरफ मानूस किया, वो जो है वो था मुर्गा। फरमाया इसी तरह आपने उसे बुलाया, उसका भी गोश्त, उसका भी खून के कतरात, उसके भी जो है वो परों के हिस्से, उसकी भी चोंच और सर का हिस्सा, उसके भी पांव और जो है वो उनके नाखूनों का हिस्सा आपस में मिलता है, और वो मुर्गा जो है वो भी अपनी शहनाइयां, अपना रंग बिखेरता हुआ, दौड़ता हुआ और अपने जो है वो परों को फैलाता हुआ खुशी की लहर उसके ऊपर दौड़ती है, और उस रंग रंगीनी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरता है, और उसकी जुबान पर भी यही होता है अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान पर भी होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ऐ अल्लाह, पहले इल्मुल यकीन था, मेरा इल्म था, मुझे यकीन था कि पैदा करने वाला तू है, जिंदा रखने वाला तू है, मारने वाला तू है, मार कर दोबारा जिंदा करने वाला तू है, हिसाब किताब लेने वाला तू है, यकीन था। अल्लाह आज जो है इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन भी हो गया है। मैंने ये सारा मंजर अपनी इन आंखों से देख लिया है। मैं यकीन करता हूं अल्लाह, मैं यकीन करता हूं कि तू ही जिंदा करने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, मौत के बाद तू ही जिंदा रखने वाला है। तो फरमाया ये परिंदों की मोहब्बत अपने नबियों के साथ। इसी तरह फरमाया अलम यौलतैर मुसख्खरातिन, दूसरा परिंदा जो है, क्या उन्होंने परिंदे को नहीं देखा जो आसमान की हवा में कानून हरकत और परवाज के साथ पाबंद होकर उड़ते रहते हैं, उन्हें अल्लाह के कानून के सिवा कोई चीज थामे हुए नहीं है। बेशक उस परवाज के असूल में ईमान वालों के लिए निशानियां है। फरमाया ये जो परिंदे उड़ रहे हैं ना, इसके अंदर कोई जो है वो साइंस ने इनके लिए कोई जाल नहीं बिछा रखा, इनके लिए कोई साइंस ने जो है वो हवा में रास्ते नहीं बना रखे। कुरान कह रहा है इनके लिए रास्ते जो बनाए हैं वो अल्लाह ने बनाए हैं। ये अल्लाह के कानून के मुताबिक उड़ रहे हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह को ही वाहिद मानते हैं और अल्लाह को ही इलाह मानते हैं। और इसी तरह फरमाया आखिरी आयत करीमा, वसख्खरना मआ दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर वकुन्ना फाइलिन, और हमने पहाड़ों और परिंदों तक दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के साथ पाबंद कर दिया था, और फरमाया ये सब के साथ मिलकर तस्बीह पढ़ते हैं और हम ही सब कुछ करने वाले थे। अल्लाह फरमाता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने परिंदों की मोहब्बत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने पहाड़ों की मोहब्बत को कायम कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते ना तो परिंदे हवा में रुक कर अपनी परवाज को रोककर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान से निकलने वाले ज़बूर का जो कलमात होते थे उनको सुनते थे और साथ तस्बीह पढ़ते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे, तिलावत करते थे ज़बूर की, ये जो पहाड़ हैं
یہ جنبش کرنے لگتے تھے، ہلنے لگتے تھے، اپنی جگہ کو چھوڑنے لگتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر زبور کی آواز کو سن کر اپنے کانوں سے فرمایا پہاڑ ہلنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہاڑ بھی میں خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے بھی میں خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ہم نے نبیوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنائے۔ اور اسی طرح آگے موضوع جو ہے وہ بڑی محبت والے ہیں کہ آگے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ نے کیسے محبت کی، آگے آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریوں نے کیسے محبت کی، اسی طرح آگے آئے گا حضور علیہ السلام کے ساتھ بگیاڑ نے کیسے محبت کی، آگے آئے گا اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ گو نے کیسے محبت کی۔ اور ان جانوروں کا اب آج سے جو ہے وہ بیان شروع ہو چکا ہے، پرندوں کا، کہ انہوں نے حضور سے کیسے محبت کی ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ الا